This takes us to the third speaker of the session. She is Dr. Gohar Afshan, Professor and Head of Anesthesia in Aga Khan University Hospital. Thank you very much for this opportunity. And I'm so glad that on Sunday there are so many people on the subject like pain, which is certainly it's a very common, one of the common symptoms, although we are not aware in this part of the world that pain management is a separate specialty now. And the topic which was given to me is how to manage neuropathic pain. मैं कोशिश करूँगी within 15 minutes I will try to capture the जो common इसके aspects हैं वो cover कर सकूँ. So what I plan that we will first like to share the common definition of the neuropathic pain, so the people और ख़ास तौर पे जो GPs हों they can understand कि actually neuropathic pain क्या है. I would also like to share what is the common classification of the neuropathic pain. What diagnostic workup? मैं यहाँ diagnostic workup पे बहुत ज़्यादा focus नहीं करूँगी. The reason I will share later. And then I will talk more about the treatment, which is the one of the common problem, especially in the people like neuropathic pain. The symptomatic treatment is the end of the day is very important. So we'll focus on this. And then at the end, I would like to conclude. Pain management में one of the association is the International Association for Study of Pain. Is a very reputable institution, and just like बहुत जैसे WHO एक common हमारे मेडिकल हेल्थ में उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे पेन में इंटरनेशनल एसोसिएशन स्टडी ऑफ पेन की बहुत अहमियत है. एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड फॉर देयर डेफिनेशन, फॉर देयर डायरेक्शंस अबाउट दीज थिंग्स. एंड दिस इज़ बेसिकली बहुत बेस करती है एविडेंस बेस पे. सो हेयर आई एम जस्ट शेयरिंग द डेफिनेशन जो मोस्ट रिसेंट है. उनकी टॉक्सोनॉमी हर 3 साल पे रिवाइज होती है. एंड दे सी एंड द रीज़न कि वाई वो डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं कॉमन को, बिकॉज दे बिलीव कि ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए कि रिगार्डलेस ऑफ द डिसिप्लिन कि कोई कहाँ काम कर रहा है, किस डिसिप्लिन में काम कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड्स वुड बी द सेम. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन के बाद अगेन दिस न्यूरोपैथिक पेन की डेफिनेशन रिवाइज हुई है. एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, सो आई नो what was the discussion behind this definition took place. So the definition about the neuropathic pain, that the pain arising as a direct consequence of a lesion or disease affecting the somatosensory system. ठीक है, तो कोई भी lesion या disease, trauma उस सिस्टम में अफेक्ट करता है न्यूरोपैथिक पेन के लिए. यहाँ एक टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि why you use that, and I often use the abnormal pain and pathological pain. पैथोलॉजिकल पेन एबनॉर्मल पेन हम उसको कहते हैं, और नॉर्मल पेन वो पेन जो बिकॉज ऑफ द सम रीज़न, बिकॉज वी ऑल नो दैट द नेचर प्लेज अ सिस्टम इन द बॉडी वेयर एनीथिंग रॉन्ग, इफ एनीथिंग कम्स रॉन्ग इन द बॉडी इट विल अपीयर एज अ पेन. अगर आपका कोई किसी को अपेंडिक्स हो रहा है और फिर दर्द है तो वो नॉर्मल पेन है, नोसिसेप्टिव पेन है. किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे भी आपने सुना ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई डिजीज़ अंदर चल रही है, कोई डिजेनरेटिव प्रॉब्लम चल रहा है और फिर पेन है, दैट इज़ अ नॉर्मल पेन. And because that normal pain is the pain carrying pathways is carrying the message that this area is wrong. मेरी चोट लग जाती है, मेरे burn हो जाता है, that the message carrying to my the brain that this is the problem, this is a normal pain. Although the normal pain also needs treatment, that doesn't mean that normal pain does not require treatment. But when we talk about the pathological pain, which in case is the neuropathic pain, where the system which is carrying the message is affected by trauma, is affected by the disease. And we'll share with the common problem जिसमें कि ऐसा होता है. There are variety of classification. और मैंने आपके फोरम को देखते हुए I would like to focus very simple classification, which is one is the anatomical side of it. So anatomically अगर हमें देखना है, 2 ही तरह के पेन न्यूरोपैथिक होंगे. एक होंगे सेंट्रल पेन, ठीक है, जो ब्रेन की CNS की प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं, और एक होंगे पेरिफेरल जो पीछे आपके हाथ की, टांग की कहीं नसों की वजह से होंगे. दिस अ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन. बट एज अ फिजिशियन, बिकॉज यू आर ऑल द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एंड मेजॉरिटी आर द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, so they normally rely on the etiology, and then they try, after the etiology, they try to treat pain. So there's a etiological diagnosis is more common with the practicing physician apart from anatomical location. And the common etiological diagnosis where these nervous system, whether peripheral nervous system or central nervous system is affected,
Our examples are the painful diabetic neuropathy, then the herpetic neuralgia, the post-herpetic neuralgia or herpetic neuralgia, post-traumatic neuralgia, trigeminal neuralgia, phantom pain. You know the phantom pain. What the phantom pain is? When after the amputation of the limb, patient still feels the pain in the limb which is not with you. Then the post-stroke pain, which is a very classical example of the central pain. ज़्यादातर neuropathic pain जो है ना peripheral examples बहुत मिलेंगी आपको. Diabetic neuropathy में मिलेगी, herpetic neuralgia में खास एक nerve आएगी. Central pain की is typical example जो stroke pain के बाद किसी को stroke हुआ, right sided paraplegia हुआ, उसके बाद जो है उसकी रिहेबिलिटेशन भी हो, सब कुछ हुआ, बट बाद में एक कांस्टेंट हाफ साइड बॉडी पेन रह गया जिसमें बर्निंग हो रही है, जिसमें पेशेंट की शार्प पेन हो रहे हैं, इज़ वेरी थ्रू आउट द डे एंड नाइट नैगिंग पेन हो रहे हैं. Then certain pain are the etiology में vitamin B12 especially deficiency pain, also neuropathic pain. So these are the common examples of neuropathic pain, and for the GPs, for the physicians, the practicing physician, this is important to know that. We all know the trigeminal neuralgia. जो पेशेंट टिपिकल आते हैं, ट्राइजेमिनल की 3 डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, एंड आई एम श्योर दैट पीपल प्रैक्टिसिंग दैट दे नो कि ऑप्थैल्मिक हुई एंड द मैक्सिलरी एंड द मैंडिबल. सो द समटाइम द पेशेंट प्रेजेंट ओनली वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बट समटाइम 2 and sometimes 3 as well. So again, this is very typical examples of the neuropathic pain. Then one of the common which is coming up in the last 10 years or 1 decade is about the pain after breast surgery, जिसमें कि axillary pain after the mastectomy, patient presenting with the symptoms of typical of neuropathy, and symptoms के भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं. Then this is the post amputation pain, where after the amputation patient feel pain in the limb which is not with him or her. Then the traumatic pain जिसमें कि आपने अगेन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बहुत फेमिलियर हैं इससे, एंड इसको आजकल हम कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम भी कहते हैं, वेयर एक्चुअली द सिंपैथेटिक इनर्वेशन डिस्टर्ब आफ्टर एनी ट्रॉमा. और दिस इज़ वेरी टिपिकल पेन. आपने देखा होगा कि आफ्टर ट्रॉमा आप सर्जन ने सर्जरी भी कर दी, फ्रैक्चर भी हील हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन रेडियोलॉजिकली, बट पेशेंट कंटिन्यूसली कंप्लेन ऑफ द पेन कि मेरा पेन बढ़ रहा है, एंड द लिम्ब इज़ बिकमिंग नॉन फंक्शनल. So the limb is non-functional, patient complain of pain, but radiologically everything is fine. ठीक है? That means there's more than the anything which we can see that आपकी कोई हड्डी ख़राब नहीं है, कोई और मसला नहीं है, नोसिसेप्टिव पेन बिल्कुल भी ये नहीं है. So it is like a behavioral pain, abnormal pain, pathological pain, which happens because of the many reasons. In this case, because of the sympathetic alteration, it can happen. Then also that the traumatic and compression nerve injuries, where the pain persists after the healing of the normal operation or fracture or whatever. और इसकी भी बहुत सी reasons हैं, इसका अलग से एक नाम भी रख दिया है, post surgical persistent pain, where the patient feel pain in spite that everything is perfectly fine inside, healing perfect हो गई है, सही चीज़ जुड़ गई है, but patient complain किए जा रहे हैं pain की. So these are all different kinds of pain. What is the probable mechanism? Why a patient feel this type of pain in neuropathy? So the neuropathic pain occurs in some, but not in all individuals, with injury as a dysfunction. जैसे हमने बताया कि चोट ही लग गई directly. But it is very very important कि ऐसे मरीज़, ख़ासतौर पे CRPS जो मैंने भी बात की थी, जिसमें कि swelling हो जाती है after the normal healing process, उसमें genetic वो बताते हैं जी हाँ मेरी बहन को भी ऐसा हुआ था, हाँ मेरे अब्बा बताते हैं उनको चोट लगी थी, उनकी भी ऐसा था कि हर सर्दी में चोट बढ़ जाती थी. तो दीज आर द सम जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती है लोगों में. सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ न्यूरोपैथिक पेन दैट द पेशेंट हैव दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री इन द फैमिली. Then all components of the nervous system may undergo some changes within the millisecond and may last indefinitely. Such an unfortunate thing. Again genetic predisposition. कि छोटी सी चोट थोड़ी देर के लिए एक नर्व को जाके टकराई. जैसे हमारे पास बहुत सारे गन शॉट के पेशेंट बीच में बहुत आते रहे हैं, जिसमें कि शियाटिक नर्व भी बच गई, बट जो सडन उसको झटका था, शॉक था, दैट डिस्टर्ब दैट शियाटिक नर्व को विद इन अ मिली सेकेंड, उसमें पेशेंट ने परसिस्ट किया पेन फॉर ईयर्स एंड मंथ्स, एंड देन दे प्रेजेंटेड विद अस. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ वेरी sensitive of all the other system if you just compare that.
When nerve gets injured, these generate ectopic impulses at the site of injury and adjacent dorsal root ganglion, and that's why these things happen. And this is a very typical example is dorsal root postherpetic neuralgia. ठीक है, सो कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको मिलेगी हिस्ट्री से जहाँ से आप ये निकालेंगे रीजंस कि वाई दिस नर्वस सिस्टम इज़ अफेक्टेड. ठीक है, सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पेन जिसमें कि एक ऑर्गन ख़राब हुआ, हड्डी को चोट लगी, स्किन जली, एंड देन द नॉर्मल पाथवे इज टेकिंग द मैसेज देयर. Here the problem is in the relying message system. So nowadays two terminologies मैं इसकी डिटेल में जानना चाहती. सेंट्रल सेंसिटाइजेशन की लोग बात कर रहे हैं. दिस इज़ लाइक अ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोमैटोसेंसरी प्रोसेस चेंज है. But here for your forum this is important that this is quite a possibility. Don't label anyone a psychogenic patient कि जी हमने तो करा लिया था सीटी स्कैन, हमने तो एक्सरे करा लिया था, हड्डी भी सही जुड़ गई, सीटी स्कैन पे भी कुछ नहीं आया, बट पेशेंट जो है बस शिकायत किए जा रहा है. सो डोंट लेबल एनी पेशेंट साइकोजेनिक बिकॉज वी आर मिसिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वेयर सिंपैथेटिक इनर्वेशंस एंड ऑल दीज एक्टोपिक सिग्नल सेंट्रल सेंसिटाइजेशन के पेशेंट आपके पास आएंगे जो कंप्लेन करेंगे विदाउट हैविंग इनसाइड द प्राइमरी प्रॉब्लम. सो देर इज़ अ लॉन्ग डायग्नोस्टिक वर्क है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने अपनी हिस्ट्री में अगर देखा है कि डायबिटीज़ बहुत पुरानी है, HbA1c बड़ा ख़राब रहता है, B12 के लेवल्स की कोई और सिम्टम मिल रही हैं, तो अकॉर्डिंगली आप कराएंगे. या अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है, सर्टेनली नॉर्मली जो फ्रैक्चर वगैरह के पेशेंट्स होते हैं ट्रॉमा की, उमन प्राइमरी सर्जन खुद सॉर्ट कर लेता है डायग्नोस्टिक वर्कअप. बट ये कि उमन जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनकी नर्व कंडक्शन स्टडीज़ भी हुई होती हैं, सो यू हैव अ क्लू कि ये क्या आपके पास है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द पेन टू डायग्नोज बिकॉज पेन यू कैन नॉट सी पेन. आपको कभी नज़र नहीं आएगा पेन ट्रैवल करता है, यहाँ से निकला यहाँ गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ. दैट्स वाई समटाइम द डायग्नोसिस ऑफ पेन इज़ डिफ़िकल्ट. And here the most important role that plays in the diagnosis of pain is the meticulous pain history. It's very very important how the patient feels pain, how the pain is started, what are the possible concurrent diseases pattern that can contribute in that, and this is very important. And certainly after the good pain history, the comprehensive examination. And as a pain physician, I have been practicing pain for more than 15 years, and I believe me, good history and examinations will lead to the good correct diagnosis. ठीक है, आपको एविडेंस के लिए सपोर्टिव एविडेंस चाहिए होता है, डिफरेंट टेस्ट चाहिए होते हैं, but the very important thing you never miss, always rely on your clinical equipment, that is history taking and examination. On history taking न्यूरोपैथिक पेन में जो टिपिकल चीज़ें मिल जाती हैं वो डिफ्यूज़ बर्निंग और इलेक्ट्रिक लाइक शूटिंग पेन. ज़रूर पेशेंट बताएगा, बर्निंग पेशेंट बताए अलर्ट हो जाए. ठीक है, गो के in the near आप देखें लिटरेचर में the burning is also coming as a part of the untreated, poorly treated post operative pain. उसमें भी burning हो सकता है. somatic nociceptive pain में भी burning हो सकता है, but the burning is a classical example. on top पे priority पे होगा तो is a neuropathic pain. ठीक है, so always alert जब patient burning की complain करे. then abrupt slow onset of the sharp pain with tingling and numbness. कुछ और साथ में हो रहा है, pain sharp आता है, फिर कुछ उंगलियां मोटी हो जाती हैं, फिर लगता है सुइयाँ चल रही हैं, कीड़े चल रहे हैं. एंड देन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो पेशेंट कई दफ़ा खुद बताता है, कई दफ़ा यू हैव टू प्रूव इज़ अबाउट द नॉन पेनफुल स्टिमुलस कॉजिंग पेन. पंखे के नीचे नहीं बैठ रही बहुत दिन से मैं, क्योंकि जब मैं पंखे के नीचे बैठती हूँ तो मुझे दर्द बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर इसी हाथ में बढ़ जाता है. सो पंखे की हवा इज़ अ नॉन पेनफुल स्टिमुलस. तो वाई पेशेंट इज़ हैविंग कंप्लेन ऑफ पेन विद दिस नॉन पेनफुल स्टिमुलस. सो दिस छोटी छोटी चीज़ें हिस्ट्री में जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती हैं पता करना. सिमिलरली नॉर्मली कभी आप किसी अपने पेशेंट पे जैसे अगर हाथ आप फेर के को बात करें तो पेशेंट वुड नेवर जंप, बट हियर द जेंटल इवन टच can cause the pain at that particular area, the exaggerated response on again the non-painful stimulus. और नॉर्मली आप कभी एज ए फिजिशियन आप पेशेंट को दबाते भी हैं, मुआयना जब करते हैं, कोई पावर भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं. सो हियर इन दिस पेशेंट देयर इज ऑलवेज एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑन द पेनफुल स्टिमुलाई. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड इज़ द न्यूरो एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कि वो किसी एक ख़ास नर्व को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सारा पेन किसी ख़ास नर्व में जा रहा है. फॉर दैट यू मस्ट नो द कॉमन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉमन नर्व प्रॉब्लम्स.
कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, डायग्नोसिस पेन की बहुत रिलाई करती है आपकी इन चीज़ों पर। सो जनरल रिव्यू तो आप करेंगे, द डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द प्राइमरी एरिया, जहाँ पे पेशेंट प्रॉब्लम की कंप्लेन कर रहा है, ट्राइजेमिनल की कर रहा है, और शियाटिक की कर रहा है, पोस्ट हेपेटिक की कर रहा है, वटेवर। सेंसरी एग्जामिनेशन में यू हैव टू सी द डर्मेटोमल पैटर्न कि कौन सा डर्मेटोम इसमें इन्वॉल्व है, इस डर्मेटोम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। अपने क्लिनिक में उसकी तस्वीर लगा लें। बहुत दफ़ा आपके पास ऐसे टाइप के पेशेंट बहुत नहीं आते, आपको शायद नंबर भूल जाएं। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट योर दिस डर्मेटोमल और नर्व की डायग्राम की बड़ी सी पिक्चर लगा लें क्लिनिक में। अगर भूल ना हो पेशेंट अरे आप पलट के देखेंगे तो यू दैट पिक्चर कैन गाइड यू, ठीक है। एंड देन एब्सेंस ऑफ रिफ्लैक्सेस। मोटर एग्जामिनेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफ़ा देर आर मैनी नर्व्स विच आर मिक्स नर्व्स। अगर सिर्फ सिंपल सेंसरी नर्व में पेन हुआ है उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। अगर कोई मिक्स नर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइजेमिनल इज अ मिक्स नर्व और बहुत सी नर्व्स मिक्स हैं, तो वहाँ पे कुछ और सिम्टम भी मिल सकते हैं। सो द मोस्ट कॉमन सोमैटोसेंसरी मोडालिटीज़ विच एग्जामिन क्लिनिकली आर टच। जैसे मैंने बताया कि टच करें और पेशेंट जो है वो जंप लगा ले। टच इज़ नॉट अ पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है। वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑल्ट्रेशन भी होती है ऐसे लोगों में, ठंडा ज़्यादा लगता है, ठंडा नहीं लगता, गर्म पता नहीं चल रहा। दीज आर थिंग्स, सो दीज आर ऑटोनॉमिक साइंस शुड बी इंक्लूडेड। So remember, the sensory alterations were originally described in the context of neuropathic pain, but recent findings, जैसे मैंने अभी बताया, अभी नोसिसेप्टिव पेन में भी हो जाती हैं। जैसे poorly treated post operative pain can cause the burning in that particular area. So pharmacological block, जैसे हमारे यहाँ पेन डिसिप्लिन में one of the thing which is very common nowadays is to put the block to diagnose the patient. आप एक ख़ास नर्व पे ब्लॉक लगाते हैं और फिर डायग्नोज करते हैं कि नहीं जी इसको इसी नस से दर्द आ रहा है। बट न्यूरोपैथिक पेन में आप ऐसा नहीं करते, ठीक है। आप शियाटिका में करते हैं, आप डिस्क के प्रॉब्लम्स में करते हैं, आप फेसिड जॉइंट के प्रॉब्लम में करते हैं, आप कैंसर के मरीजों में करते हैं जिनमें कि आपको शक होता है कि पैनक्रियास का कैंसर है, तो पैनक्रियास की नस को दबा दें और फिर देखें। बट इन द न्यूरोपैथिक पेन डायग्नोस्टिक ब्लॉक का रोल हार्डली एनी है। नॉर्मली जो आप रिलाई करते हैं न्यूरोपैथिक पेन में, वो किसी इंजेक्शन या इंटरवेंशन पे रिलाई नहीं करते। द मेन रिलाई ऑन द न्यूरोपैथिक पेन इज़ द मेडिकेशंस। एंड मेडिकेशन में जो कॉमन मेडिकेशंस हैं जो दैट हेल्प इन न्यूरोपैथिक पेन इज़ एंटी कन्वल्सेंट एंड द सिस्टमिक लोकल एनेस्थेटिक्स। एंटी कन्वल्सेंट में टेग्रिटॉल आप सब इस्तेमाल करते होंगे, कार्बामेज़ेपिन, टेग्रिटॉल, फेनिटोइन, लेमोट्रोजीन एंड एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है। और ये ड्रग्स बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। जैसे आप और फिजिशियंस एज ए फिजिशियन को आपको पता होता है कि हमेशा दवाई जो शुरू की जाती है उसकी लोअर डोज एंड मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं। सो यू हैव टू गो, ख़ास तौर पे हर वो दवाई जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रही है, इट हैज़ टू बी गिवन विद कॉशियस, ठीक है। सारे साइड इफ़ेक्ट बता के, कोई बेस लाइन अगर आपको देखना है, कोई टेस्ट ये दवाई सही है इसके लिए, वो भी कराएं। सिस्टमिक सारी डिजीज़ को एक्सक्लूड करें, या अगर है तो उसके साथ उसकी ड्रग एडजस्ट करें एंड देन मेक दिस प्लान। गैबापेंटिन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, सोडियम चैनल ब्लॉकर के लिए इस्तेमाल होती है। एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट्स होता है, गाबा रिसेप्टर, प्रीगैबलिन, ये दो दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंटी डिप्रेस, फिर आपकी लोकल दवाइयाँ भी, अगर आपको कोई ख़ास जगह पे, जैसे इवन ट्राइजेमिनल तक में भी कैप्साइसिन क्रीम, टॉपिकल लाइडोकेन एंड द क्रीम कंटेनिंग एंटी डिप्रेसेंट लाइक डॉक्सिपिन। डॉक्सिपिन ये आजकल बहुत ज़्यादा लिटरेचर में आ रहा है कि डॉक्सिपिन लोकल इस्तेमाल करें। जैसे तो एंटी डिप्रेसेंट से आप सिस्टमेटिकली दे रहे होते हैं लोगों में, ऐसे मरीज़ों में, बट लोकल का भी इफेक्ट इसका आ रहा है। सिस्टमिक एंटी डिप्रेसेंट का बहुत रोल है इसमें। और याद रखिएगा, जैसे आजकल हर बीमारी में इस पर कभी आप ये मत सोचें कि जी मैं सिंगल ड्रग दे के पेशेंट को ट्रीट करना चाहूँ। मल्टी मोडालिटी और मल्टीपल ड्रग्स ग्रुप्स आजकल ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज आप कोई दवाई को भी सीलिंग पे लेके नहीं जाते, ऊपर लेके नहीं जाते कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हों। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक से ज़्यादा ग्रुप का चुनाव करें अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त, जिसमें आपकी एंटी कन्वर्जन ज़रूर हो, एंटी डिप्रेशन का भी इस्तेमाल ज़रूर हो एंड कोई लोकल भी हो। सो यू विल यूज़ 2 और 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ की मेडिकेशन यूज़ करेंगे, तो किसी भी दवाई को आपको ऊपर ले जाना नहीं पड़ेगा। बिकॉज रिमेंबर, दीज मेडिकेशंस आर नॉट लाइक अ एंटीबायोटिक विच विल स्टार्ट एंड फिनिश इन 7 days और 10 days और 14 days टाइम। अगर ये दवाइयाँ काम करेंगी तो यू हैव टू कंटिन्यू फॉर 6 months, फॉर ईयर्स एंड समटाइम फॉर ईयर्स, फॉर 5 years इवन, बिकॉज न्यूरोपैथिक पेन रिवर्स नहीं होते फ़ौरन। सो ये आपका प्लान हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल कि आपने डोज भी एस्केलेट करनी आहिस्ता आहिस्ता, एक से ज़्यादा दवाइयाँ डालनी हैं, सो द पेशेंट कैन बी।
जो इसमें एक बहुत दिन तक कंट्रोवर्सी चली अबाउट द रोल ऑफ ट्रेमाडोल और नारकोटिक्स, उसका भी तकरीबन इन द लास्ट 2-3 years में इतना लिटरेचर आ गया. नाउ वी नो दैट अपार्ट फ्रॉम द एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वर्जेंट, द थर्ड ग्रुप विच इज़ वेरी इफेक्टिव सिस्टमेटिकली इज़ द नारकोटिक. और नारकोटिक में भी न्यूरोपैथिक पेन में द ट्रेमाडोल इज़ मोर इफेक्टिव दैन एनी अदर फर्स्ट क्लास नारकोटिक्स. न्यूरोपैथिक पेन में नारकोटिक्स में मॉर्फिन से ज़्यादा ट्रेमाडोल काम करेगी. रिमेंबर प्लीज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज यू टेक, दैट द ट्रेमाडोल बिकॉज ऑफ द अदर सेरोटोनिन रीअपटेक की वजह से इज़ मोर इफेक्टिव इन द न्यूरोपैथिक पेन देन द फर्स्ट क्लास नारकोटिक्स. नर्व ब्लॉक्स जो नॉर्मली आपको कभी भी कोई पेन ठीक ना हो और सर्जरी से पहले और इसके बाद एक ऑप्शन होता है नर्व ब्लॉक का. हेयर द नर्व ब्लॉक की केसेस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर सेटल ऑन द मेडिकेशंस. कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी पे लोग आजकल बहुत काम कर रहे हैं कि ऐसी दवाइयाँ हों क्योंकि लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करनी है, जिनके कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हों, तो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी में उस पर काम हो रहा है, बट सब एक्सपेरिमेंटल फेज पे है. सो हेयर आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड दैट द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो न्यूरोपैथिक पेन डायग्नोस होगा ना, आपकी अच्छी हिस्ट्री लेने से डायग्नोस होगा और आपकी एग्जामिनेशन से होगा. यू हैव टू फाइंड द नर्व डिसफंक्शन, मोटर और सेंसरी और ऑटोनोइक. अगर वो मिल जाते हैं आपको उसके अलामत और हिस्ट्री मिल रही है आपको, टिपिकल बर्निंग, टिंगलिंग, रेस्टिंग पेन, ऑल दीज थिंग्स, सो दीज आर द वेरी टिपिकल ऑफ डायग्नोसिस. And the pharmacotherapy is still play an important role, but remember this is not a one single modality. You should prescribe more than one group of drug. You should prescribe at least minimum of 3, so that you can plan in a way that the patient would not face much side effects, because these are the drugs which you will use for a long term, maybe months and years and years. So thank you very much.